Pastor Anna Wog. ये पास्टर एना वॉग है And she is Anika. और मैं अनिका हूँ। We are from Roti Ghar Church, Jaipur. हम लोग रोटी घर चर्च जयपुर से हैं And we got one more chance to worship with you for the Lord. और हमको आज एक और समय मिला है। So before we start our worship, let's bow our heads in prayer. तो इससे पहले खुदा की इबादत हम शुरू करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। Father God, we are thankful to you खुदा धन्यवाद that you have given us this time, कि आपने हमको ये समय दिया है that we worship you, Lord. कि हम आपकी इबादत करें परमेश्वर। Lord, we commit our lives unto you. अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। This time, Lord, we pray and we surrender unto you, Lord. प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Let your name alone be magnified. प्रभु सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Worship is a time when we get really close to God. परमेश्वर की स्तुति आराधना एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर के निकट खुदा के समीप आ सकते हैं। And why we can come to Him in worship? Because God has forgiven us. और क्यों हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको माफ कर दिया। He gave His Son for you and for me to honor Him and to be one with Him. और परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए इसलिए दिया कि हम परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर से प्रेम कर सके, एक रिश्ता बना सके। Beloved, the essence of worship is forgiveness. और जब हम आराधना सच में करते हैं, हम माफ करते हैं। God forgave us and He forgave everything whatever we did against Him. और परमेश्वर ने हमको माफ किया और हमने खुदा के खिलाफ जो भी किया था, खुदा ने उसको याद नहीं रखा। He gave us our rights back. परमेश्वर ने हमको अपने अधिकार वापस दिए। And if we have to worship Him, और अगर हमको परमेश्वर की आराधना करनी है, we need to act like Him. परमेश्वर के जैसे खुदा के स्वरूप हमको होना है। Amen. Amen. So before we start worshiping, I would encourage you, if you have anything against anyone, just forgive them and start worshiping with us. और आइए ये समय होगा, अगर आपके दिल में किसी के भी खिलाफ कुछ भी है, हम उनको माफ करें और फिर परमेश्वर के सामने खुदा की इबादत करें। You know why? क्यों? Because our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा And He परमेश्वर accepts us as we are. और हम जैसे हैं परमेश्वर हमको ग्रहण करता है। Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। So let's praise Him. तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
that you have given to us, Lord. We humble ourselves in your presence, Lord, and we love you with all our heart, Master. You are to be glorified, Lord. We lift your name up on high, Master. हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर हैं. Lord, come down on earth for us, Master. Speak to us, Lord. Let your plan be purposed in your life, Lord. Thank you, Father, for this time. Thank you for enabling us to be in your presence, Lord. We give you glory and honor, Father. We praise and thank you, Father, for all the love that you have poured on us. Father, you came and forgave us, Lord, so that we may have eternal life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory and honor, Father. एक बार फिर से हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है. No one is like him. No one can take the glory which God has, which belongs to God, beloved. सब मिलके गाएं जोर से प्रभु के लिए. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. सच में हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है. No one is like him, beloved. He is worthy to be praised. He is worthy to be honored. He is worthy to be magnified. He alone is worthy to be magnified. Let's offer our sacrifices to him. अपना धन्यवाद परमेश्वर को अर्पित करें. प्रभु से कहें एक बार, प्रभु आपसे बढ़ के कोई नहीं है. You alone are there for me, Lord. Thank you, Jesus, for this time. Lord, you have given us this precious time, Lord. We humble ourselves in your presence and we thank and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. God has appointed this time to come in fellowship once again. परमेश्वर ने ये समय हमको नियुक्त किया है कि हम फिर से खुदा के साथ संगति में आ सकें. In the beginning of our worship, I had made it clear that had God not forgiven us, we wouldn't have been allowed to worship Him. और ये इबादत शुरू करने से पहले मैंने ये बताया था कि अगर खुदा ने हमको माफ नहीं किया होता, क्षमा नहीं किया होता, तो हम खुदा की इबादत कर ही नहीं पाते. Beloved, forgiveness is an important part of Christian life. और एक मसीह जीवन में माफ करना, क्षमा करना एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है. In fact, the Christian life begins with forgiveness only. और यहाँ तक कि जो मसीह जीवन है वो क्षमा से ही शुरू होता है. God was madly in love with you and me. परमेश्वर ने ऐसा दीवानेपन से हमसे प्रेम किया that He did not hesitate to sacrifice His own Son for you. कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को देने के वक्त दो बार नहीं सोचा. But there was a creech in between. मगर प्रियो, हमारे बीच में एक दरार आ गई थी. It was a big creech. और एक बड़ी सी दरार आ गई थी. And so God had to come down on earth to fill that gap. और परमेश्वर को इस दुनिया में, जगत में आना पड़ा कि वो जो दरार है, जो गैप है, उस चीज को भर सके. And that creech could have been, filled only by shedding of the blood. और ये जो दरार थी, जो इतना बड़ा हमारे बीच में गैप हो गया था, वो सिर्फ एक लहू को बहाने के द्वारा ही वापस जुड़ सकता था. God did not hesitate to give His own Son for us. प्रियो, परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए देने के लिए झिझकाए नहीं. I am a mother. मैं एक माँ हूँ. I can feel the pain when God gave His Son to be sacrificed on earth. और मैं एक ऐसा जो दर्द है उसको महसूस कर सकती हूँ जब परमेश्वर ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि जगत को बचा सके. It was not easy, beloved. प्रियो, ये आसान नहीं था. But He gave His Son because He wanted to forgive the mankind. और क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया? इसलिए ताकि वो मानव जगत को क्षमा कर सके. One of the prominent part of Lord's prayer is forgive us sins. और हम जो परमेश्वर की जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें एक अहम में जो पंक्ति ये भी है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर. And it is very easy for us to say, sometimes we say we are sinner, sometimes we say we are saved sinners. और हम कई बार आसानी से बोलते हैं कि हम तो पापी हैं और हम बचाए गए पापी हैं. And we just keep doing sins, Lord, but you forgive us. कि प्रभु, हम तो पाप करते ही रहते हैं मगर तू तो हमें क्षमा कर देता है. Because you are a forgiving God. क्योंकि तू तो एक माफ करने वाला परमेश्वर है. Because you loved us, Lord. क्योंकि परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है. And so you are easy to forgive. तो
परमेश्वर आप हमको कैसे आराम से क्षमा You कर are सकते a हैं forgiving God. कि प्रभु तो क्षमा करने वाला You have परमेश्वर loved है us. कि तूने हमसे ऐसा मोहब्बत ऐसा प्रेम किया है। God says, okay, परमेश्वर कहता है ठीक है, I am ready to forgive मैं you, तुमको माफ करूंगा, but there is a condition. मगर इसमें एक शर्त है। The condition is, शर्त क्या है? as we forgive those, जिस प्रकार हम अपने अपराध करने वालों को भी क्षमा करते हैं, God is going to forgive us exactly in the same manner. प्रियो इधर लिखा है कि जिस प्रकार हम अपने अपराध करने वालों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमारे अपराध भी क्षमा हो पाएंगे। Now this is a hitch, अब इधर तो प्रॉब्लम हो गई, because we were ready to be forgiven, क्योंकि हम तो आराम से माफ किए जाने वाले थे, and we never thought the manner with which we forgive, और हमने तो सोचा ही नहीं कि जिस प्रकार हम क्षमा कर रहे हैं, exactly in the same manner we will be forgiven. वैसे ही हम भी क्षमा होंगे। You will say, आप बोलेंगे, well, you don't know what he did to me. आप बोल सकते हैं कि आप नहीं जानते कि उस इंसान ने फला इंसान ने मेरे साथ क्या किया है, उसने तो मुझे नाश करना चाहा। They deserve to suffer like that because they have offended me. वो योग्य है कि उनके जीवन में ऐसी आप बीती हो। At a young age, that girl was abused sexually. और एक छोटी सी उम्र में वो जो लड़की थी उसका शोषण हुआ। And that girl was my daughter, my friend, my relative. और वो मेरी बेटी थी या मेरी दोस्त थी या फिर मेरे रिश्तेदार थी। I cannot forgive that man. मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकता। Beloved, C.S. Lewis said, प्रियो, C.S. लुइस एक परमेश्वर का दास था, उसने यूं कहा, everyone says forgiveness is a beautiful idea. सब कहते हैं कि क्षमा एक खूबसूरत सी बात है, unless you have something to forgive. जब तक हमको किसी को क्षमा ना करना पड़े। It is easy to preach than to apply it, isn't it? प्रचार करना आसान है, बल्कि इसके कि हम उसको अपने जीवन में उतारें, उसको ढालें। There are two parts in forgiveness and both are important. और प्रियो, माफ करने में दो भाग हैं और दोनों बहुत जरूरी हैं। First, पहला, do not judge हम न्याय ना करें and do not be condemned, और दंड आज्ञा ना दें, lest you be judged, ताकि हमारे ऊपर न्याय ना हो lest you be condemned. और हमारे ऊपर दंड आज्ञा ना And हो। the second thing is, दूसरी बात जो है, forgive and you will be forgiven. क्षमा करें और तुम्हें भी क्षमा मिली जाएगी। Amen. आमीन। Beloved, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, if you forgive man अगर आप इंसान को क्षमा करते हैं, when they sin against you, जब वो आपके खिलाफ में अपराध करते your हैं, heavenly Father is going to forgive you आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा when you sin against him. जब आप परमेश्वर के विरोध में अपराध करते हैं। We can say it in another manner. तो अगर हम उसको दूसरी तरीके से बोले, Forgive and you will be forgiven. अगर आप क्षमा करेंगे तो आप भी क्षमा You पाएंगे, don't forgive, you will not be और forgiven. अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो प्रियो आप क्षमा नहीं पाएंगे। One more thing we can say. एक और बात हम बोल सकते हैं, Because love keeps no record of anything that has gone wrong. क्योंकि जो प्रेम है वो पुरानी बातों पे हिसाब किताब को नहीं रखता। There is one thing that God cannot do and human can do. एक ऐसी चीज है जो इंसान कर सकता है और परमेश्वर नहीं कर सकता। Now that is something creepy. क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? You will say what God cannot do. ऐसा क्या है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? Human is incapable, इंसान है जो सीमित है, but God is unlimited God. मगर परमेश्वर तो असीमित है। The only thing God cannot do, rather He doesn't do, एक ऐसा काम जो परमेश्वर नहीं करता, या कहे कि वो जो नहीं कर सकता या नहीं करता, He doesn't keep record of what we have done wrong. कि परमेश्वर जो हम बातें करते हैं, जो गलत करते हैं, उनका हिसाब नहीं रखता। I can forgive him, मैं किसी को फला को क्षमा कर सकती हूँ, but I will keep record of when and what time I have forgiven that मगर person. मैंने उसका हिसाब रखा होता है कि इस समय इस दिन इसने मेरे साथ ये गलत किया, And if he does it again, और अगर उसने वापस कर दिया, I will remind him everything from point 1 to the end what he had done before. और पूरी जो लाइन उसने की होगी वो मैं पूरी उसको याद दिला सकती हूँ मुंह जबानी। But the word of God says, अगर परमेश्वर का वचन कहता love है, keeps no record. जो प्रेम है वो पुरानी बातों का हिसाब नहीं रखता। When Jesus hung on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, He spoke those 11 precious words. प्रियो, परमेश्वर ने वो शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बोले, Father, forgive them, for they know not what they are doing. कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Luke 23:34. लूक उसका 23 उसका 34। Imagine when Jesus was hung on the cross. जरा सोचिए, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, Crowd just laughed, mocked. They made fun of him. और जो उधर की जो भीड़ थी, उधर जो लोग इकट्ठा थे, वो समूह परमेश्वर का उपहास कर रहा था, खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे।
They were cheering, they were jeering, everything was going और on. प्रियो परमेश्वर के खिलाफ वो लोग जश्न मना रहे थे कि परमेश्वर दर्द से वेदना से जा रहे हैं। And they taunted him. और प्रियो परमेश्वर यीशु If मसीह you को are ताने the मारे king of थे Israel, और ऐसे ताने मारे कि अगर तो सच में यहूदियों का राजा है come down from the cross and save yourself. तो अपने आप को क्रूस से उतार और अपने आप को बचा ले। Well, you will say, अगर आप बोल सकते हैं I'm ready to forgive. कि मैं तो माफ कर सकती हूँ, But that person should at least feel repentance. कि कम से कम उस इंसान को ये महसूस तो हो कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफ कर दूँ। But if they don't do that, मगर अगर वो पश्चाताप ही नहीं करते we get an excuse to continue with bitterness and anger and a desire to get even with them. और हम अगर वो पश्चाताप नहीं करते, उनको ग्लानि नहीं हो रही होती, तो हमको लगता है कि मैं भी अब इसके साथ बुरा करूं, जैसा इसने किया है वैसा का तैसा उसको दे दूं। Jesus was on the cross. प्रियो, आप याद रखें कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे Even as he said these words, और जब वो बोल रहे थे कि हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते, no one was there to applaud him. प्रियो कोई नहीं था जो परमेश्वर की ओर था, परमेश्वर की वाहवाही कर रहा था। Those who passed through him, they were insulting him. और जो परमेश्वर, वो समूह जो परमेश्वर के सामने से जा रहा था, परमेश्वर का, यीशु मसीह का उपहास कर रहा था। Let me make it clear to you. मैं आपको साफ साफ बताऊं, The people who were there, जो लोग वहाँ थे they were quite pleased with themselves. और वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक अच्छा काम कर रखा है। Pilate washed his hands off from the whole sordid affair. और प्रियो, जो पिलातुस था उसने अपने हाथ धो लिए जो भी कार्य हो रहा था उसके खिलाफ कि मैं इन चीजों से कुछ मायने नहीं रखता। Jewish people, they hated him with the fierce, irrational hatred. और याद जो यहूदी थे वो बहुत ज्यादा घृणा करते थे। They were happy to see him suffer and die. और जब वो वेदना से, यीशु मसीह वेदना से, पीड़ाओं से जा रहे हैं उधर हमारे लिए क्रूस पे, और वो लोग थे जो जश्न मना रहे थे, आनंद में उस बात को मान Look रहे थे। like, you know, that evil is in the air everywhere. और हम सोच सकते हैं कि हर जगह ही दुष्टता है, Forces of darkness had done their work. और जो दुष्ट है, जो दुष्ट सामर्थ है, वो अपना कार्य करने में सफल हो रही है। Son of God would be in the tomb after a while. कि परमेश्वर का जो पुत्र है अब कब्र में जाने वाला है। No one said, किसी ने नहीं बोला, I'm sorry, I was wrong. किसी ने परमेश्वर यीशु मसीह से नहीं बोला कि मुझे माफ कर दे, मैं गलत हूँ, It was a mistake. कि मुझसे गलती हो गई। We were such fools to crucify him. और हम बहुत बेवकूफ थे, हमें समझ नहीं थी कि हमने आपका क्रूसीकरण किया। They were so happy because they had crucified him. और मगर प्रियो, वो लोग खुश थे कि हमने यीशु मसीह को क्रूस पे रखा है। Beloved, if people did not spare Jesus, they are not going to spare you and me. और प्रियो, अगर लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यीशु मसीह कि लोग हमको छोड़ेंगे। But even then, Jesus chose to forgive them. मगर फिर भी यीशु मसीह ने ये चुना कि वो हमको माफ करे। You know why? क्यों? Because his reward was not coming from people. क्योंकि यीशु मसीह का फल इंसानों से, लोगों से नहीं आ रहा था। His reward was coming from God. उस परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो फल है वो परमेश्वर से आ रहा था। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो, Praise the Lord. परमेश्वर की And महिमा what हो। happens when your reward comes from the Lord? और क्या होता है जब आपका भाग, आपका फल परमेश्वर की तरफ से आता है? What happens? You go into the grave. तो आप कब्र में भी जाते हैं। How many days Jesus was in the grave? कितने दिन आप कब्र में थे? यीशु मसीह कितने दिन कब्र में थे? He was there for 3 days. प्रियो, वो 3 दिन तक कब्र में थे। It looked like everything is over and ऐसा out. लगा कि सब कुछ खराब हो गया है, नाश हो गया है, खत्म हो गया है। You know what? मगर पता है क्या? But his reward was coming from God. यीशु मसीह का जो फल है वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा था। And what happened then? और फिर क्या हुआ? God resurrected Jesus from the dead. From the death. और परमेश्वर ने यीशु मसीह का पुनरुत्थान किया मौत से। Amen. Amen. This is what happens when God comes to your rescue. और ये कब होता है? जब परमेश्वर आपको बचाने आ जाता है। This is what happens when God gives you reward from heaven. और जब ये तब होता है जब परमेश्वर अपना फल स्वर्ग से आपको देता है। Mark Twain said, मार्क ट्वेन ने बोला, "It is the fragrance of the flower which gives to the heel that which has crushed it." और माफ करना एक ऐसे फूल के जैसा है कि जब वो दबाया जाता है, कुचला जाता है एक एड़ी से, एक पैर से, तो उस पैर में भी खुशबू दे देता है। Amen. Amen.
when we are filled with the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं, when we are filled with the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, it doesn't matter फर्क नहीं what पड़ता people tell us, लोग आपको क्या कहते because हैं, they are not giving us salary, क्योंकि वो हमको सैलरी नहीं दे रहे, they are not going to feed us. वो हमको नहीं खिला रहे. Our reward is great. हमारा जो फल है, हमारा भाग है, वो बड़ा है God is going to forgive और us. परमेश्वर हमको माफ करने वाला है. Let me tell you, beloved, प्रियो, मैं आज आपको एक बात it is बताऊं not an option. कि ये हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि मैं इसका चुनाव कर सकती हूँ या नहीं. It is a command of God, ये परमेश्वर की आज्ञा है and we need to obey the और command. हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना I want to अवश्य है. finish with a small story. और मैं एक छोटी सी कहानी से खत्म करना There were चाहूँगी. two brothers very close to each other, और दो भाई थे जो बहुत ही ज्यादा आपस में करीब थे and they used to love each other a lot. और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे. One day some fight happened, एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ. and it is an everyday affair for us also maybe. मेरे ख्याल से हम सबके घर में होते होंगे And झगड़े. the fight became big. और जो झगड़ा है वो बड़ा हुआ. You know why? क्यों? Because no one said sorry. क्योंकि किसी ने माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं बोला. Days turned into weeks, और जो दिन है वो हफ्तों में बदल गए. weeks into months, हफ्ते जो थे वो महीनों में बदल गए months into years, और जो महीने हैं वो सालों में बदल गए. and now generation changed. और अब पीढ़ियां बदल रही हैं मगर माफी किसी ने नहीं मांगी. And both the brothers were old now. और अब जो दोनों भाई हैं वो बूढ़े हो गए हैं. But there was a creech between their houses. और उन दोनों के घर के बीच में एक दरार थी It was a big land, और एक बड़ा सा घर था उनका and there was a creech in और between. बीच में एक दरार थी. And this boy, this old man used to feel very hurt. The elder brother. और जो बड़ा भाई था उसको बड़ा दुख होता कि हमारे बीच में ऐसा हुआ, मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ फला I किया had loved him so much. कि मैंने तो इससे इतना प्रेम किया था. मेरा Couldn't he भाई say था, sorry to me क्या वो मुझसे माफी भी नहीं मांग सकता just था? once? एक बार भी नहीं. And he was feeling very और sad. उसको बड़ा बुरा लगा. As he was thinking, और जब वो सोच रहा था there was a knock on the door, उसके दरवाजे पे किवाड़ पे खटखटाहट and आई he opened the door. और उसने वो दरवाजा खोला. He saw a carpenter there, उसने एक बढ़ई को देखा and he said, और बोला, "Can I help you with something? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? I make good furnitures." और वो बढ़ई बोलता है कि मैं बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? And this elder brother was already in pain और ये जो बड़ा भाई है वो वैसे ही दर्द में था, सोच रहा था about his younger brother. अपने भाई के बारे में. He said, "Can you see the tree in my land? और उसने बोला, क्या तुम मेरे जमीन में इतने सारे पेड़ देख सकते हो? Do one thing, एक काम करो, cut it off उन पेड़ों को काट दो and make a big tall fence around my house. और मेरे घर के इर्द गिर्द एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दो. I don't want to see my younger मैं brother." अपने छोटे भाई को नहीं देखना चाहता. This carpenter looked at him. और बढ़ई ने उसको देखा. He said, "Okay." उसने बोला ठीक है. This boy, this old man, he gave him all the things which he required. और जो बड़ा भाई था उसने उस बढ़ई को जितनी भी चीजें उसको चाहिए थी वो दे दी. And he went to the city और वो शहर जाता है for some work. कुछ काम से. When he returned back और in the जब वो evening, वापस आया शाम को he saw the beautiful bridge over the creech. और उसने देखा कि उन दोनों घरों के बीच में एक दीवार की जगह एक खूबसूरत सा पुल था. But this is not what the brother has said. मगर बड़े भाई ने उससे पुल नहीं दीवार बनाने को बोला था. And he saw the younger brother standing next to the creech, next to the bridge. और उसने देखा कि पुल के उस ओर जो उसका छोटा भाई है वो खड़ा था. He just ran towards the older brother. और वो उस पुल से भाग के अपने बड़े भाई के पास जाता है And he hugged him and और kissed उसको him. जोर से गले लगाता है And he told him, और उसको बोलता है, "Brother, I'm sorry. कि हे भाई मुझे माफ कर I दे. never knew you are so special. और मैं नहीं जानता था कि तुम कितने खास हो, In spite of what I did, you still made bridges." कि मैंने इतना गलत किया फिर भी आपने हमारे लिए पुल बना दिया, हमको हमारे पास आप आए हो. And this brother was really puzzled. और ये जो बड़ा भाई ये कश्मकश में है कि क्या हो रहा है. He's not able to speak anything. वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा. And he looked at the carpenter. और उस बढ़ई को देखता है And carpenter did like this. और बढ़ई उसके सामने हाथ हिलाता है. And he doesn't know what to do. और अब उसको पता नहीं वो क्या करे. But he told carpenter, मगर उस बढ़ई से पूछता है "Stay for some more days. कि कुछ दिन और रुक जा. I need to break some more creatures." कि मुझे और दरारों को ठीक करना है. And this carpenter spoke a very beautiful thing. और एक बहुत खूबसूरत सी बात जो बढ़ई बोलता "I है would have loved to stay with you, कि मैं बहुत खुश होता कि मैं आपके साथ और दिन बिता but सकता. I have many more bridges to build मगर मेरे पास बहुत सारे पुल हैं जो मुझे अभी और बनाने हैं and things to fix in other और places." चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है. Beloved, this is exactly what God has told us. प्रियो, परमेश्वर भी तो हमसे यही चाहता है कि हम करें. We are here to build bridges. परमेश्वर ने हमको इधर इसलिए रखा है कि हम पुलों को बनाएं. We have here to fix the places.
और परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा है कि हम चीजों को ठीक करें। We are given an authority. परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। God has given us authority under the heaven and over the earth. परमेश्वर ने हमको स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है। You want to be healed? क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? You want to feel good? क्या आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं? Forgive people. लोगों को माफ कीजिए। Because with the measure, क्योंकि जिस नाप से you're going to forgive people. आप लोगों को माफ करते हैं, Exactly with the same measure. उसी नाप से आपको भी माफ किया जाएगा। Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Beloved, this is not a new message, प्रियो, ये एक नया संदेश आपके पास नहीं but आया, this is a very important message. मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपके पास आया है। God wants to forgive you. परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। Release your people. अपने लोगों को छुटकारा दीजिए, उनको खोलिए। Release your hurt. अपने जीवन में जो आपको दर्द है, जो आपके जीवन में चोट है, उसको खोलिए, हटाइए। When I chose to forgive people, जब मैंने चुना कि मैं लोगों को माफ, believe me, तो मेरा विश्वास कीजिए, I was healed. परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। God gave me a life beautiful. परमेश्वर ने एक खूबसूरत जिंदगी मुझे दी I है realized it और मैंने ये जाना। only after I forgave. जब मैं लोगों को माफ कर पाई, तभी मैंने इन चीजों को महसूस किया। Let's commit ourselves to God. अपने जीवन को हम परमेश्वर के सामने समर्पित God is करें। with us. परमेश्वर हमारे मध्य में है। Could we just cry out to the Lord क्या हम परमेश्वर के सामने आए and we tell Him, और खुदा से बोले, Lord, forgive me. प्रभु मुझे माफ कीजिए। Let's commit ourselves to the Lord, beloved, and tell Him that we love you, Lord. प्रभु से बोले, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। God for giving us this time. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस समय हमको मिला। God has brought us together to be united with Him. परमेश्वर ने हम सबको चुना है कि हम परमेश्वर में एक हो जाए। May God bless each one of us परमेश्वर हम सबको आशीष दे। as we proceed on His love and forgiveness. जब हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की क्षमा में आगे बढ़ते हैं, May God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे। Amen.